خوش آمدید ارطغرل، ہم تمہارا ہی انتظار کر رہے تھے۔ آؤ آؤ کچھ کھا لو، مرنے سے پہلے کچھ مزے کر لو۔ اسے کیسے پتہ چلا کہ کارا بیگ وہاں جائے گا؟ ہمارے اندر کوئی غدار ہے تانگت، جیسے اس نے کارا بیگ ارطغرل کو دیا ہے ایسے ہی وہ ارطغرل دے گا مجھے۔ السلام علیکم ناظرین، پچھلی قسط کے اینڈ پر آپ نے دیکھا کہ ارطغرل اور اس کے ساتھی حلیمہ سلطان کو بچانے کے لیے نکل پڑتے ہیں۔ اس قسط کے آغاز میں وہ مزید آگے کی طرف بڑھتے ہیں۔ دوسری طرف قبیلے میں گندوگدو اپنے خیمے میں بیٹھ کر سلجان کی کچھ پرانی باتوں کو یاد کرتا ہے۔ اتنے میں تاجر افراسیاب وہاں پہنچتا ہے اور گندوگدو سے کہتا ہے کہ ہم نے سونا تیار کر لیا ہے اور کچھ دن میں ہی وہ قبیلے میں پہنچ جائے گا۔ گندوگدو کہتا ہے بہت اچھے، پھر آپ کچھ آرام کر لیں۔ پھر وہ دمرل کو کہتا ہے کہ ان کو مہمانوں والے خیمے میں لے جاؤ اور ان کی خوب خاطر مدارت کرو۔ دوسری طرف گونجا گل بکری کا دودھ نکال رہی ہوتی ہے۔ اتنے میں سلجان وہاں پہنچتی ہے اور کہتی ہے میں گندوگدو کی خوشی کی خاطر خاموش ہو گئی ہوں اور میں تم دونوں کے خیمے میں کبھی بھی داخل نہیں ہوں گی، لیکن یہ غور سے سن لو، اگر مجھے لگا کہ تم اور تمہاری پھوپھی آیتلن اکٹھی ہو کر گندوگدو کو کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہی ہیں تو میں تم دونوں کو مار ڈالوں گی۔ گونجا گل اسے کہتی ہے تم پریشان مت ہو، میں اسے وہ خوشی دوں گی جو وہ بھول چکا ہے، میں اسے بچے دوں گی تاکہ وہ اپنے خاندان پر فخر کر سکے۔ دوسری طرف تانگت کارا بیگ کو لے کر ایک جگہ بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے ارطغرل یہاں آئے گا۔ تھوڑی دیر بعد ارطغرل اور اس کے ساتھی وہاں پہنچ جاتے ہیں اور ان کو وہاں بیٹھے ہوئے دیکھ لیتے ہیں۔ پھر ارطغرل تانگت کو للکارتا ہے، خوش آمدید ارطغرل، ہم تمہارا ہی انتظار کر رہے تھے۔ آؤ آؤ کچھ کھا لو، مرنے سے پہلے کچھ مزے کر لو۔ اس دوران تانگت کے علاوہ سارے منگول مارے جاتے ہیں۔ تانگت کو ارطغرل نے گرا دیا تھا، لیکن پھر اس نے دیکھا کہ کارا بیگ بھاگ رہا ہے، اس لیے وہ تانگت کو ادھر ہی چھوڑ کر کارا بیگ کے پیچھے بھاگنے لگتا ہے۔ تھوڑی دیر بھاگنے کے بعد وہ کارا بیگ کو پکڑ لیتا ہے اور اسے پوچھتا ہے کہ بتاؤ سلطان کے محل میں نیان کا ساتھی کون ہے؟ لیکن اتنے میں تانگت پیچھے سے گھوڑے پر سوار ہو کر آ جاتا ہے اور اپنا خنجر پھینکتا ہے جو سیدھا کارا بیگ کے سینے میں جا کر لگتا ہے۔ کارا بیگ کچھ بولے بغیر ادھر ہی مر جاتا ہے اور تانگت وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ اس کے بعد ترگت کہتا ہے تانگت کو کیسے پتا چلا کہ ہم یہاں آئیں گے؟ ارطغرل کہتا ہے اس کا ایک ہی جواب ہے، ان کو عبد الرحمن کے ارادوں کا پتہ چل گیا ہے۔ بامسی کہتا ہے ہمیں عبد الرحمن کو بچانا ہوگا۔ ارطغرل کہتا ہے میں نیان کو جانتا ہوں، وہ اسے مارے گا نہیں بلکہ وہ مجھے مارنے کے لیے اس کو استعمال کرے گا۔ دوسری طرف قبیلے میں آیتلن گونجا گل کو تیار کر رہی ہوتی ہے کیونکہ آج حلیمہ خاتون نے گندوگدو کے لیے اس کا ہاتھ مانگنے آنا تھا۔ دوسری طرف گندوگدو کو سلجان تیار کرا رہی ہوتی ہے اور کہتی ہے اس خوشی والے دن میں آپ کو اکیلا نہیں چھوڑنا چاہتی، میں چاہتی ہوں کہ آپ گونجا گل کے ساتھ ایک خوشحال زندگی گزارو اور آپ کے بہت سارے بچے ہوں۔ اس کے بعد حلیمہ خاتون گندوگدو اور گوکچے کے ساتھ کرکس سردار کے خیمے میں پہنچ جاتی ہیں۔ سب ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس کے بعد وہ سب اندر جا کر دسترخوان پر بیٹھ جاتے ہیں۔ اتنے میں ارطغرل بھی قبیلے میں پہنچ جاتا ہے۔ دمرل اسے کہتا ہے کہ حکیم ارطغرل آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ ارطغرل کہتا ہے میں جلد ان کے پاس جاؤں گا۔ پھر ارطغرل سیدھا کرکس سردار کے خیمے میں جاتا ہے جہاں گندوگدو اور گونجا گل کی منگنی ہونی تھی۔ ارطغرل کو سب خوش آمدید کہتے ہیں اور پھر وہ بھی ان کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے۔ اس کے بعد حلیمہ خاتون اپنی بات شروع کرتی ہیں۔ ہمارے یہاں آنے کی اصل وجہ یہ ہے کہ میں اپنے بیٹے گندوگدو کے لیے گمس تیکن کی بیٹی گونجا گل کا ہاتھ مانگنا چاہتی ہوں۔ اس کے بعد گمس تیکن بولتا ہے گندوگدو بہت ہی صاف دل اور بہادر انسان ہے، اس نے میری بیٹی کو چنا ہے جو نہ صرف ہمارے لیے بلکہ میری بیٹی گونجا گل کے لیے بھی خوشی کی بات ہے۔ پھر وہ سلیمان شاہ کے بارے میں بات کرتا ہے کہ ایک دن وہ بھی حلیمہ خاتون کا ہاتھ مانگنے آئے تھے۔ مجھے وہ خوبصورت دن آج بھی یاد ہے اور ایسا لگتا ہے جیسے کل ہوا ہو۔ آج کا دن بہت رحمت والا دن ہے، ہماری طرف سے ان دونوں کے لیے بہت سی نیک خواہشات اور تمنائیں ہیں، اللہ کرے کہ یہ ہمیشہ ایک ساتھ زندگی گزاریں۔ میں اپنی اکلوتی بیٹی گونجا گل کو گندوگدو کی امان میں دیتا ہوں۔ اس طرح گندوگدو اور گونجا گل کی منگنی ہو جاتی ہے۔ دوسری طرف سلجان اپنے خیمے میں اکیلی بیٹھ کر رو رہی ہوتی ہے۔ منگنی کے بعد سب لوگ اٹھ کر ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں اور گلے ملتے ہیں۔ پھر ارطغرل اور گمس تیکن کا سامنا ہوتا ہے۔ گمس تیکن اپنا ہاتھ آگے بڑھاتا ہے تاکہ ارطغرل اسے چومے، لیکن ارطغرل ایسا نہیں کرتا اور صرف ہاتھ اپنے سینے پر رکھ کر آگے بڑھ جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ سب دوبارہ بیٹھ جاتے ہیں
और फिर आयमा खातून की तरफ से कुछ तोहफे तोइफ गोंजा गुल को दिए जाते हैं। वहाँ से फारिग होने के बाद अर्तुल हकीम अर्तुग के खेमे में जाता है। हकीम अर्तुग कहता है, मैं आपसे एक ज़रूरी बात करना चाहता हूँ। मैं आपके लिए कुछ प्यार और नेक ख्वाहिशात लाया हूँ, उनकी तरफ से जो आपके दोस्तों की तरह हैं। उन्होंने कहा है कि अर्तुल एक पाक जंग लड़ रहा है और उसने वो जिम्मेदारी पूरी की है जो उसने कई सालों पहले ली थी। अर्तुल कहता है, ये आप क्या कह रहे हैं? हकीम अर्तुग कहता है, अक्लमंद बूढ़े आदमी की तरफ से आपको सलाम। जिस पर अर्तुल मुस्कुराता है और कहता है, तो आप उन लोगों में से हैं जो किसी जिम्मेदारी पर हैं? हकीम अर्तुग कहता है, हाँ, अल्लाह का शुक्र है। फिर अर्तुल कहता है, वो कहाँ इंतज़ार कर रहे हैं? हकीम अर्तुग कहता है, तुर्कों के पाक शहर अहलत में। अगले दिन सुबह होते ही अर्तुल हकीम अर्तुग के साथ अहलत रवाना हो जाता है। दूसरी तरफ नोयान के डेरे पर तानगुत वापस पहुंचता है और नोयान को बताता है कि अर्तुल अपने आदमियों के साथ हमारे रास्ते में आ गया था। मुझे काराबिक को मारना पड़ा क्योंकि वो अर्तुल को सादुद्दीन कोपे का नाम बताने वाला था। नोयान कहता है, फ़ौरन सादुद्दीन कोपे को पैगाम भिजवाओ कि सुंगर तेकिन सुल्तान अलाउद्दीन से नहीं मिलना चाहिए। फिर नोयान कहता है, उसे कैसे पता चला कि काराबिक वहाँ जाएगा? हमारे अंदर कोई गद्दार है तानगुत। जैसे उसने काराबिक अर्तुल को दिया है, ऐसे ही वो अर्तुल देगा मुझे। फिर वो हमजा और अब्दुर्रहमान की तरफ देखने लगता है। दूसरी तरफ अर्तुल और हकीम अर्तुग अहलत पहुंच जाते हैं। हकीम अर्तुग अर्तुल को इस शहर की अहमियत के बारे में बताता है कि जो इस शहर पर कंट्रोल हासिल कर लेता है वो अपने आबाव अजदाद के विरसे पर कंट्रोल कर लेता है। इसके बाद वो एक दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो जाते हैं, जहाँ पहले से काफ़ी सारे कबीलों के नुमाइंदे बैठे होते हैं। ये दोनों भी उनके साथ बैठ जाते हैं। थोड़ी देर बाद 3 दाढ़ी वाले बूढ़े बुजुर्ग वहाँ आते हैं, जिन्हें देखकर सब खड़े हो जाते हैं। इसके बाद एक बुजुर्ग आदमी बोलना शुरू करता है, 24 कबीलों के बहादुर लोगों, आप इस बात के गवाह बनो कि तुर्की शहर एक बड़े इनकलाब के लिए तैयार हो रहे हैं। बुरे दिन गुजर जाएंगे और एक दिन हम तुर्कों की एक सल्तनत कायम करेंगे। इसके लिए हम में से कुछ को मरना होगा ताकि बाकी ज़िंदा रह सकें। आज हम ये फैसला करेंगे कि कौन मरेगा और कौन ज़िंदा रहेगा। इसके बाद वो बुज़ुर्ग उनसे पूछता है कि आप में से कौन कौन अल्लाह की राह में मरना चाहता है। वहाँ मौजूद सब लोग अपने हाथ खड़े करते हैं। इसके बाद वो बुज़ुर्ग अपने बाएं हाथ वाले आदमियों से कहते हैं कि आप लोग लड़ोगे और शहीद होगे और अनातोलिया को मंगोलों से बचाओगे। फिर वो अपने दाएं हाथ वाले आदमियों से कहता है कि आप हमारी ज़मीनों पर जगह जगह जाओगे और लड़कर नए नए इलाके फतह करोगे। इसके बाद वो बुज़ुर्ग सबको जाने का कहता है, लेकिन अर्तुल को रोक लेता है और कहता है, तुम इस्लामिक दुनिया के बारे में क्या कहना चाहते हो? अर्तुल कहता है, ये हमारे लिए बहुत बड़ा इम्तिहान है। भाई भाई को मार रहे हैं। अगर ऐसे ही हम एक दूसरे को मारते रहे तो हमारे दुश्मन हम पर ऐसे ही हुकूमत करते रहेंगे। इनकलाब के लिए हमें अपनी अक्ल और रूह को जगाना होगा। वो बुजुर्ग अर्तुल की तारीफ़ करता है और कहता है कि सुलेमान शाह ने तुम्हारी बहुत अच्छी तरबियत की है। और फिर कहता है कि अब अगली जगह जहाँ तुम जाओगे वह बीज़ांतीन के पास है। तुम अपना कबीला वहाँ आबाद करने की कोशिश करो, लेकिन उससे पहले जल्द जाकर वो जगह देख लो। अर्तुल कहता है, मैं बहुत जल्द वहाँ जाऊँगा। फिर वह बुजुर्ग अर्तुल को अल्लाह हाफिज़ कहता है और अर्तुल वहाँ से निकल पड़ता है और यहाँ इस किस्त का इख्तिताम हो जाता है। तो मैं मेरी समझ आई है अहमक आदमी। सुंगर तेकिन और हलीमा सुल्तान अलाउद्दीन के सामने नहीं पहुंचने चाहिए। कल सुबह तुम कोनिया रवाना हो जाओगे। मेरी नज़रों से दूर हो जाओ आप। अर्तुल भाई, अब्दुर्रहमान अल नयान की तरफ से खबर लाया है। क्या? हलीमा सुल्तान खतरे में है भाई। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस किस्त के आगाज़ में दोनों कबीलों के सिपाही ट्रेनिंग एरिया में आकर प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। इतने में अर्तुल अपने साथियों के साथ वहां आता है। उसे देखकर सिपाही अर्तुल जिंदाबाद के नारे लगाने लगते हैं। फिर अर्तुल उनसे खिताब करता है, आप लोगों ने कभी मुझे अकेला नहीं छोड़ा और हमेशा मुझ पर यकीन किया है। हालांकि गद्दारों ने मुझे बदनाम करने की पूरी कोशिश की। आप लोग कभी भी ओगज़ और अपने मज़हब के कवानीन को मत छोड़ना। दूसरी तरफ नयान काराबिक से बात करता है, सुंगर तेकिन और हलीमा सुल्तान अलाउद्दीन के सामने नहीं पहुंचने चाहिए। कल सुबह तुम कोनिया रवाना हो जाओगे। फिर नयान उसे कहता है कि अगर तुम ऐसा ना कर सके
तो मैं कोनिया आकर अपने हाथों से तुम्हें मार डालूंगा। कल तुम कोनिया रवाना होगे और तुम्हारे साथ तानगुत को भेजूंगा ताकि तुम बाहिफाजत वहाँ पहुँच सको। तानगुत नयान से कहता है, क्या मैं हमजा और अब्दुर्रहमान को भी साथ ले जाऊँ? नयान कहता है, नहीं, वो यहीं रहेंगे। इसके बाद नयान अपने घोड़े पर सवार होकर कहीं चला जाता है। दूसरी तरफ अर्तुल इब्नुल अरबी के पास जाता है। इब्नुल अरबी कहते हैं, मेरे जाने का वक्त आ गया है, लेकिन मेरा दरवेश आपके पास मेरी अमानत है। बेहतर होगा कि इसकी ड्यूटी आप कबीले की मस्जिद में लगा दें, ये बच्चों को तालीम देगा। अर्तुल कहता है, आप परेशान मत हों। इसके बाद वो इब्नुल अरबी से गले मिलकर वहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ नयान के डेरे पर तानगुत बैठकर नयान के बारे में सोचता है और वो ख्यालात उसके जहन में आते हैं जिसमें कई बार नयान ने उसे मारा था या बेइज्जत किया था। तानगुत अपने आप से बातें करता है और कहता है, नयान ने उगेडी की फ़ौज को तबाह कर दिया है, इसलिए ऐसे आदमी को जीत नहीं हार मिलनी चाहिए। इस तरह तानगुत अंदर से नयान के खिलाफ हो जाता है और चाहता है कि नयान को कमांडर के ओहदे से हटा दिया जाए। इसके बाद तानगुत उठकर अब्दुर्रहमान के पास जाता है और उसे कहता है कि नयान हमारे साथ बहुत ज़्यादती करता है। जब हम नाकाम होकर लौटते हैं तो हमें कहता है कि तुम जिंदा वापस क्यों आए। कल वो काराबिक को कोनिया भेज रहा है और चाहता है कि हलीमा सुल्तान को मार दिया जाए इससे पहले कि वो सुल्तान अलाउद्दीन से मुलाकात करे, और अगर कुछ भी गलत हुआ तो नयान मुझे मार देगा। दरअसल ये खबर तानगुत ने जानबूझकर अब्दुर्रहमान को दी थी, क्योंकि उसे पता था कि अब्दुर्रहमान जाकर ये खबर अर्तुल तक पहुंचाएगा और फिर अर्तुल हलीमा सुल्तान को बचाने के लिए आएगा। इस तरह मैं अर्तुल को काबू करके मार डालूंगा। दूसरी तरफ कबीले में गुमस्तकिन आयतुलन को कहता है कि अर्तुल हमारे लिए मुश्किलात पैदा करेगा। आयतुलन उसे कहती है, अर्तुल तुम्हारी सोच से भी ज़्यादा तेज़ है। गुमस्तकिन कहता है, अभी मैंने अपना असल खेल नहीं खेला, इस जैसों को तो मैंने कोनिया के महल में तरबियत दी है। मैं तुतेकिन को अर्तुल से लड़ा दूंगा, फिर देखूंगा कि वो कितना तेज़ है। दूसरी तरफ नयान अकेले में ताजिर इफ्रासियाब से मुलाकात करता है और उससे कहता है कि जब तुम कबीले से माल लेने जाओगे तो सोना अपने साथ नहीं लेके जाओगे और कहोगे कि सोना रास्ते में आ रहा है। जब तुम कबीले में सोने का इंतज़ार कर रहे होगे, इस दौरान मैं तुमसे एक काम करवाऊंगा। दूसरी तरफ गोंजागुल कबीले से बाहर आई होती है ताकि अपने वालिद के लिए कुछ जड़ी बूटियाँ लेकर जा सके। इतने में गोंदोगदो वहाँ आता है। गोंदोगदो उसे कहता है कि मैं अपनी ज़िंदगी तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूँ, जिस पर गोंजागुल भी मुस्कुराकर रजामंदी का इजहार कर देती है। दूसरी तरफ कबीले में जरगे की तैयारी हो रही थी, जिसमें यह तय होना था कि कबीले के सिपाहियों का कमांडर अब कौन होगा। यह जरगा अर्तुल के कहने पर होना था, क्योंकि उसे लगता था कि तुतेकिन इस जिम्मेदारी के काबिल नहीं है। तुतेकिन भी जरगे में जाने की तैयारी करता है और कहता है कि मैं अर्तुल को कामयाब नहीं होने दूंगा। दूसरी तरफ अब्दुर्रहमान गायकली के गार में पहुंचता है और गायकली को कहता है कि फ़ौरन कबीले में अर्तुल भाई के पास जाओ और बताओ कि हलीमा सुल्तान और सुंगर तेकिन की ज़िंदगी खतरे में है। कबीले में जरगा शुरू हो जाता है। अर्तुल कहता है, सिपाहियों की कमांड दोबारा हमें मिल जानी चाहिए, क्योंकि तुतेकिन की गलतियों की वजह से कबीले को बहुत नुकसान हुआ है। तुतेकिन कहता है, तुम मौके का फ़ायदा उठा रहे हो, क्या तुम अपने एक हाथ से सिपाहियों के कमांडर बनना चाहते हो? अर्तुल कहता है, नहीं, मैं कमांडर नहीं बनना चाहता, बल्कि मैं इस ओहदे के लिए गोंदोगदो का नाम तजवीज़ करता हूँ। फिर हाइमा खातून बोलती हैं और कहती हैं, मैं भी यही चाहती हूँ, लेकिन कुरकुल सरदार उनकी मुखालफत करता है और कहता है कि लोग क्या कहेंगे कि ये फ़ैसला हमने क्यों किया है। इसके बाद हकीम अर्तुक बोल पड़ता है और कुरकुल सरदार से कहता है कि काफ़ी अरसे से हमारा कबीला मुश्किलात में घिरा हुआ है, इसलिए बेहतर है कि आप जरगे के लोगों को ये फ़ैसला करने दें। जिस पर कुरकुल सरदार रजामंद हो जाता है और जरगे के लोगों से मुखातिब होकर कहता है, जो लोग गोंदोगदो को सिपाहियों का कमांडर बनाना चाहते हैं वो अपने हाथ खड़े करें। पहले कई कबीले के लोग हाथ उठाते हैं और फिर हैरानकुन तौर पर कुरकुल सरदार भी हाथ खड़ा कर देता है। इसके बाद दुर्गा के बाकी लोग भी हाथ खड़े कर देते हैं। इस रात तुतेकिन के अलावा जरगे के तमाम लोगों ने गोंदोगदो के हक में फ़ैसला दे दिया। इसके बाद गोंदोगदो खड़ा होता है और कहता है, अल्लाह आप पर अपनी रहमत करे कि आप लोगों ने मुझे इस काबिल समझा। आप ये जान लें कि मैं दोनों कबीलों के सिपाहियों को अपने भाइयों की तरह समझूंगा और मैं इनको जंग के लिए ऐसे तैयार करूंगा जैसे वो सब एक ही बाप के बेटे हों। इसके बाद सब लोग उठकर गोंदोगदो को मुबारकबाद देते हैं और उसके गले मिलते हैं। जरगे के बाद तुतेकिन गुमस्तकिन के खेमे में जाता है और गुस्से से कहता है कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। गुमस्तकिन कहता है, ये मैंने नहीं बल्कि तुम्हारे वालिद ने किया है। तुम्हारा वालिद और बाकी लोग फैसला कर चुके थे, उसके बाद मैंने हाथ खड़ा किया था। उन्होंने पहले ही सोचा हुआ था कि तुम्हें इस ओहदे से हटाना है। फिर गुमस्तकिन उसे कुरकुल सरदार के खिलाफ भड़काता है और कहता है, पहले तुम शादी करो और कुछ अच्छे दिन गुजारो, इसके बाद तुम्हारा असल काम शुरू होगा। तुम्हारा वालिद बूढ़ा हो चुका है और बीमार है, इसलिए सरदारी का बोझ नहीं उठा सकता। अब ये तुम्हारा वक्त है और ज़रूरत पड़ने पर मैं तुम्हारे साथ खड़ा होऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए।
दूसरी तरफ हैमा खातून के खेमे में सब लोग खाना खा रहे होते हैं। इतने में गुंदोगदो कहता है, वालिदा मैं आपसे एक इजाज़त चाहता हूँ। कल आप मेरे लिए एक लड़की का हाथ मांगने जाएंगी। अगर सलजान रजामंद होती है तो मैं इसे तलाक नहीं दूंगा। इसके बाद सलजान बोलती है और कहती है, मैं आपकी खुशी के लिए रजामंद हूँ। हैमा खातून पूछती हैं, कौन है लड़की? गुंदोगदो कहता है, गोंजा गुल। हैमा खातून कहती हैं, अब तुम यही चाहते हो और सलजान ने भी इजाज़त दे दी है तो मेरी तरफ से भी इजाज़त है। दूसरी तरफ गायकली अर्तुल को खबर देने के लिए कबीले की तरफ रवाना होता है। अर्तुल भाई, अब्दुर्रहमान अल नयान की तरफ से खबर लाया है। क्या? हलीमा सुल्तान खतरे में है भाई। फिर गायकली कहता है कि नयान कारा बेग को कोनिया भेज रहा है ताकि वो हलीमा सुल्तान को मार दे और वो सुल्तान अलाउद्दीन से मुलाकात ना कर सके। इसके बाद अर्तुल गुंदोगदो के पास जाता है और उसे बताता है कि कल मुझे यहाँ से जाना होगा। हलीमा सुल्तान और दिल्ली अमीर की जान खतरे में है। गुंदोगदो कहता है, मुझे भी साथ ले चलो। अर्तुल कहता है, नहीं, कबीले को और हमारी वालदा को आपकी ज़रूरत है। अगले दिन सुबह होते ही अर्तुल अपने साथियों के साथ रवाना हो जाता है और यहाँ इस किस्त का अख्तिताम हो जाता है। तुम्हारा ये हाल किसने किया है बेटा? किसने किया है? इसका जिम्मेदार बताओ। अर्तुल। क्या हुआ? अर्तुल बच गया। कैसे बच गया वो? तुतेकिन कबीले में वापस आ गया है। उसने हर चीज़ बता दी है नयान, हर चीज़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पिछली किस्त के एंड पर आपने देखा कि अर्तुल के साथियों ने ऐन वक्त पर आकर अर्तुल को बचा लिया था। इस किस्त के आगाज में कबीले के दाखिली रास्ते पर मौजूद ढोल बजना शुरू हो जाता है, जो इस बात की निशानी थी कि कोई आ रहा है। सब चौंक कर उधर देखने लगते हैं। थोड़ी देर बाद इब्नुल अरबी और उनके साथी तुतेकिन को लेकर वहां पहुंच जाते हैं। कबीले के लोग तुतेकिन को देखकर चौंक जाते हैं। इब्नुल अरबी सलाम करने के बाद कहते हैं कि मैं तुतेकिन को उसके वालिद के हवाले करने आया हूँ। कुरकुत सरदार बेटे को जिंदा देखकर जज्बाती हो जाता है और रोने लगता है। गुंदोगदो अपने सिपाहियों को हुक्म देता है कि अपनी तलवारें नीचे कर लो, जिसके बाद सब सिपाही दुर्गा के सिपाहियों से तलवारें हटाकर नीचे कर लेते हैं। कुरकुत सरदार तुतेकिन से पूछता है कि तुम्हारा ये हाल किसने किया है? तुतेकिन कहता है कि इस सब का जिम्मेदार अर्तुल है। जब उसने अर्तुल का नाम लिया तो सब चौंक गए और दोनों कबीलों के सिपाहियों ने एक दफ़ा फिर एक दूसरे पर तलवारें तान लीं। लेकिन दरअसल तुतेकिन का कहने का मतलब कुछ और था। गुंदोगदो साहब को खामोश कराता है ताकि वो तुतेकिन की बात को पूरा सुन लें। इसके बाद तुतेकिन अपनी बात आगे बढ़ाता है और कहता है, इस गम की असल वजह अर्तुल है। इसने अपनी जिद की वजह से दोनों कबीलों को तबाह कर दिया है। अर्तुल की वजह से ही मंगोलों ने हम पर हमला किया था। सबको ये बता दो कि जिस शख्स ने मेरे साथ ये किया है और मेरे सिपाहियों को मारा है और कमांडर अर्तकोश और उसके सिपाहियों को मारा है, वो अर्तुल नहीं है। ये सुनकर अर्तुल और उसके साथी सुकून का सांस लेते हैं। दोनों कबीलों के सिपाही अपनी तलवारें नीचे कर लेते हैं, जबकि कारा बेग चुपके से वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद तुतेकिन कहता है, अर्तुल बहुत बेचैन आदमी है, लेकिन ये गद्दार नहीं है। जिस पर कुरकुत सरदार और बाकी लोग मुस्कुराने लगते हैं। इतने में दुआन कहता है, कारा बेग भाग गया। जिस पर अर्तुल फौरन उन्हें घोड़ों की तरफ जाने को कहता है और वो जल्दी से निकल जाते हैं। उनके जाने के बाद कबीले के लोग तुतेकिन के पास जाते हैं ताकि उसे करीब से देख सकें। दूसरी तरफ अर्तुल और उसके साथी घोड़ों के पास जाते हैं। तुर्कुत कहता है, भाई आप यहीं हैमा खातून के पास रहो, हम कारा बेग को देख लेंगे। जिसके बाद अर्तुल रुक जाता है और उसके तीनों साथी कारा बेग के पीछे रवाना हो जाते हैं। दूसरी तरफ नयान भी कबीले के करीब एक जगह पर आया हुआ था और कबीले की निगरानी कर रहा था। दरअसल वो अर्तुल की सजा को अपनी आंखों से देखना चाह रहा था। फिर वो समझ गया कि कुछ गड़बड़ है। इसके बाद वो वहाँ से मुड़ जाता है। दूसरी तरफ कबीले में सब लोग अर्तुल के हक में नारे लगाने लगते हैं। इसके बाद अर्तुल उनसे एक खिताब करता है और कहता है, भाइयों और बहनों, कबीले के बहादुर सिपाहियों, अल्लाह का शुक्र है कि हम नयान के जाल से बच निकले हैं। लेकिन ये जंग अभी शुरू हुई है और तब तक ख़त्म नहीं होगी जब तक हम उन सब को ख़त्म नहीं कर देते। ना ही नयान और ना ही कबीले का कोई गद्दार सजा से बचेगा।
उन सब को कीमत चुकानी पड़ेगी। इसके बाद सब लोग अल्लाह अकबर के नारे लगाने लगते हैं। दूसरी तरफ काराबिक भाग रहा होता है, लेकिन उसका घोड़ा एक जगह पहुंचकर रुक जाता है और आगे बढ़ने से इनकार कर देता है, जिसके बाद वो घोड़े से उतरकर एक तरफ भागने लगता है। इतने में अर्तुल के सिपाही वहां पहुंच जाते हैं। वो भी घोड़ों से उतरकर उसके पीछे भागने लगते हैं और थोड़ी देर बाद उसको घेर लेते हैं। इतने में चारों तरफ से मंगोल निकल आते हैं और उन पर हमला कर देते हैं। वो तीनों मंगोलों से लड़ने लगते हैं। इस दौरान काराबिक फिर भागने में कामयाब हो जाता है। वो भागते भागते एक जगह थक कर गिर जाता है। इतने में नुयान वहां पहुंच जाता है। क्या हुआ? अर्तुल बच गया। कैसे बच गया वो? तुतेकिन कबीले में वापस आ गया है। उसने हर चीज बता दी है नुयान, हर चीज। इसके बाद नुयान काराबिक को मारना शुरू कर देता है और उसे खूब मारता है। दूसरी तरफ अर्तुल के साथी मंगोलों से लड़ रहे होते हैं। कुछ देर लड़ाई के बाद वो सबको मार देते हैं। इस लड़ाई के दौरान तुर्गत भी थोड़ा जख्मी हो गया था। उसके बाजू पर तलवार लगी थी। तुर्गत कहता है ये हल्का सा जख्म है, ठीक हो जाएगा। इसके बाद वो दोबारा काराबिक को पकड़ने के लिए भागते हैं। दूसरी तरफ कबीले में कुरकुर सरदार तुतेकिन से कहता है, मैं बहुत बड़ी गलती करने जा रहा था। अर्तुल बिल्कुल सही था। मैं उसकी जुर्रत और अक्लमंदी को समझ ना सका। अल्लाह मुझे माफ़ करे। इसके बाद तुतेकिन पूछता है कि क्या मेरे सिपाही बुआज और शामसा वापस आए हैं। कुरकुर सरदार कहता है, नहीं, हमें उनके बारे में कुछ पता नहीं है। दूसरी तरफ अर्तुल के साथी भागते भागते उस जगह पहुंचते हैं जहां कुछ देर पहले नुयान काराबिक को मार रहा था और फिर उसे लेकर वहां से निकल गया था। वो तीनों निशान देखकर समझ जाते हैं कि मंगोल काराबिक को अपने साथ ले गए हैं। दूसरी तरफ कबीले में अर्तुल अपनी वालदा के खेमे में जाता है। इसके बाद वो सब खुशी का इजहार करते हैं कि सब खत्म हो गया। इतने में कुरकुर सरदार भी वहाँ पहुँच जाता है और खुशी से अर्तुल की तरफ अपनी बाहें फैलाता है, जिसके बाद अर्तुल भी उससे गले मिलता है। कुरकुर सरदार कहता है, क्या तुम मुझे माफ़ करोगे? अर्तुल कहता है, जंग हमारे दरवाजे पर है मामू, और गैडे की फौज दिन ब दिन अनातोलिया के करीब आती जा रही है। इसलिए इस सूरत हाल में हमें एक दूसरे पर गुस्सा होने का हक नहीं है। फिर वो हैमा खातून की तरफ आता है और पूछता है, क्या आप मुझे माफ़ कर पाओगी? हैमा खातून कहती हैं, सब कुछ ख़त्म हो चुका है भाई, ये हमारी गलती नहीं थी, बल्कि दुश्मन ने हमें ऐसा करने पर मजबूर कर दिया था। अब से हम अपने दुश्मन को ये मौका नहीं देंगे। दूसरी तरफ गुमस्तेकिन अपने खेमे में जाता है और गुस्से से एक बर्तन को ठोकर मारता है। इतने में आयतुल वहाँ आ जाती है और पूछती है, क्या हुआ भाई? गुमस्तेकिन कहता है, अर्तुल बच गया और एक दफ़ा फिर वो हमारे मकसद में हायल हो गया है। अगर सुल्तान अलाउद्दीन को अर्तुल के कारनामों का पता चल गया तो मुझे मरबरेब का ओहदा मिलना नामुमकिन होगा। मुझे कुछ करना होगा। आयतुल उसे समझाती है कि हमें अक्लमंदी से काम लेना होगा। अर्तुल इस वक्त एक हीरो बन चुका है, या तो तुम्हें उससे बड़ा हीरो बनना होगा या उसके खिलाफ जाना होगा। दूसरी तरफ गोकचे तुतेकिन के पास जाती है और कहती है कि ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, मुझे अर्तुल का पता तुम्हें नहीं बताना चाहिए था। तुतेकिन कहता है, तुम अपने आप को कसूरवार मत समझो, हम दोनों जानते हैं कि सब का जिम्मेदार अर्तुल है। गोकचे कहती है, तुम ठीक हो जाओ, फिर उससे बदला लेने का सोचना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ी रहूंगी। दूसरी तरफ अर्तुल के साथी कबीले में वापस आ जाते हैं और अर्तुल को बताते हैं कि हमारे रास्ते में मंगोल आ गए थे, जिसकी वजह से हम काराबिक को नहीं पकड़ सके और वो उसे साथ ले गए हैं। अर्तुल कहता है, तैयार हो जाओ, अब नुयान पर हमले का वक्त आ गया है। दूसरी तरफ हकीम अर्तुल के एक बार फिर एक खत लिख रहा होता है कि अर्तुल ने तमाम मुश्किलात से छुटकारा हासिल कर लिया है और दुश्मनों के जाल से निकल आया है। अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं उसे आपसे मुलाकात के लिए आखलत लाना चाहता हूँ। दूसरी तरफ अर्तुल और उसके साथी इकट्ठे बैठे होते हैं। इतने में इब्नुल अरबी और दरवेश वहाँ आ जाते हैं। इब्नुल अरबी कहते हैं, जंग करीब है और फिर ये दुनिया देखेगी कि कैसे आप नई फतवात हासिल करोगे। इसके बाद वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुछ वाक़यात सुनाते हैं। दूसरी तरफ तुतेकिन के सिपाही बुआज और शामसा भी वापस कबीले में आ जाते हैं। तुतेकिन उनको देखकर बहुत खुश होता है और पूछता है, तुम लोग कैसे बच गए? बुआज कहता है, हमें करीबी कबीले के लोग उठा के ले गए थे, उन्होंने हमारी जान बचाई है, फिर हम ठीक होते ही वापस आ गए। दूसरी तरफ नुयान सख्त गुस्से में था। इतने में तानगुत वहाँ पहुँचता है और वो कागजात नुयान को देता है जो उसने हलीमा सुल्तान से लिए थे। नुयान खुश हो जाता है और कहता है, तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि तुम मेरे सबसे ज़्यादा काबिल यकीन आदमी हो। तुम वो चीज़ वापस ले आए जो सुंगर तेकिन हमसे ले गया था। तानगुत कहता है, सुंगर तेकिन वहाँ से निकल आया है और कोनिया की तरफ रवाना है, जिस पर नुयान एक दफ़ा फिर परेशान हो जाता है और यहाँ इस किस्त का इख्तिताम हो जाता है।